हेलो एवरीवन, मैं प्रभु शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हमारी आज की इस क्लास के अंदर। बच्चों, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो पढ़ाई करी थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, देन हमने उसके बाद वेलोसिटी और स्पीड के रिगार्डिंग बातें करी, उसका फॉर्मूला देखा हम लोगों ने। आज देन हमने एक टॉपिक और किया था, एवरेज स्पीड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग ऑल दीज टॉपिक, और उसके साथ साथ हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इन सब के बारे में भी बातें करते हैं। तो चलिए गाइज, रेडी हो जाइए। आज का पहला न्यूमेरिकल, ए कार ट्रेवल्स, जस्ट राइट डाउन, ए कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, a car travels 30 kilometer at uniform speed of 40 kilometer per hour. A car travels 30 kilometer with uniform speed of 40 kilometer per hour, and next 30 kilometer at uniform speed of 20 kilometer per hour. Calculate its average velocity. तो अब हमें इसकी क्या बच्चों, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? एवरेज वेलोसिटी formula, what is the formula for average velocity, or you can say yes, average velocity, that is total time, that is total distance upon total time taken. This is the formula for average velocity. Now solution part, जल्दी बताइए फटाफट, व्हाट इज गिवन इन दिस इक्वेशन? 30 किलोमीटर, यूनिफॉर्म स्पीड 40। फर्स्ट केस 30 किलोमीटर्स विथ 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम क्वेश्चन मार्क नहीं पता। सेकंड केस 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर। नाउ नेक्स्ट 30 kilometer at 20 kilometer per hour, time is equal to, time t2 is equal to question mark. Total distance cover, total distance is equal to 30 plus 30 is equal to 60 kilometer per hour. Total time is equal to t1 plus t2, t1 and t2, this will be your total time. Okay, now first we have to calculate total time, that is t1 and t2. Now t1, we know that speed is equal to distance upon time. This is the formula for speed, distance upon time. Speed is given 40, distance is given 30, time is given as t1. Got it? Time is t1. So from this, t1 is equal to, cross multiply it, 30 by 40 hour, that is t1 is equal to 3 by 4 hour. t1 is 3 by 4, and in the same way t2 will be 30 by 20, that is 3 by 2 hour. t2 will be 3 by 2 hour. Now t1 plus t2, 3 by 4 plus 3 by 2. Just take the LCM. We are taking the LCM as 8. 8 LCM आ गया आपके पास में। ये कितना आ गया? 4 to 6 plus 12. 4 3 12. Okay, yes, this is 18 by 8, or you can say 9 by 4. So total time will be 9 by 4 hour. Clear? Now we have total distance as 1, total time as 2. Now put this in your formula. Just put it in your formula. So what you will get?
total distance covered is 60 kilometer, total time taken is 9/4 hour. It implies 60 upon 9 into 4 is equal to, this is 240/9. So just multiply, divide करें 240/9, it will come as 26.6 kilometer per hour. So this is your average speed, 26/6 kilometer per hour. Got it? I think ये आपको clear होगा. Just दोबारा देखो. A car travels 30 kilometer with uniform speed of 40 kilometer per hour and the next 30 kilometer at uniform speed of 20 kilometer per hour. You have to calculate its average velocity. Formula for average velocity is total distance covered upon total time taken. Okay. Now in first case 30 kilometer with 40 kilometer per hour. Second case 30 kilometer with 20 kilometer per hour. Now total distance covered will be 30 plus 30, that is 60 kilometer per hour. Okay. Now we have to find out the total time, but total time is not given. So first we have to calculate the time taken for this first case and for the second case. We know that speed is equal to distance upon time. From this, time is equal to distance upon speed. So by putting the formula, we will get T1 is equal to 3/4 and T2 is equal to 3/2. Just add both these, T1 and T2 को just add कर देंगे फटाफट, तो we will get 3/4 plus 3/2 is equal to 9/4. So 9/4 hours is your total time taken to cover these 60 kilometer. Now put both these total distance and total time taken into your main formula. This is your main formula. 60 kilometer divided by 9/4 hour. We will get 60 divided by 9/4. 4 will come as a numerator, so it will be 60 into 4 divided by 9, that is 240 divided by 9, and if you solve this you will get 26.6 kilometer per hour your average speed. Got it? Clear होगी बात ये? पक्का average speed or average velocity you can say that, whatever is given in your question. Okay, so this is your average speed, not the velocity, because distance may be direction may be changing. So this is your average speed. The formula is same. In place of distance you will get displacement. Okay, so now we will take one more question based on this average speed. So just try to solve these questions. The main point in these question is try to read this particular language at least 2 times. एटलीस्ट 2 बार आप लोग इस लैंग्वेज को पढ़िए, देन आप लोग ट्राई कीजिए कि किस तरीके से सॉल्व करना है. चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखिए. ऑन ए ट्रैक ऑफ 120 किलोमीटर, ऑन ए ट्रैक ऑफ 120 किलोमीटर, अ ट्रेन ट्रेवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर, अ ट्रेन ट्रेवल्स first 30 kilometer at a speed of 30 kilometer per hour, at a speed of 30 kilometer per hour, and 30 kilometer per hour, how fast train should travel remaining, how fast train should travel remaining distance to get average speed of 60 kilometer per hour for entire trip. Now see this question. On a track of 120 kilometers, suppose this is your track of A to B, this is 120 kilometer. So on a track of 120 kilometer, a train travels first 30 kilometer at a speed of 30 kilometer per hour. So this is a point X. This is 30 kilometer and train is traveling with a speed of 30 kilometer per hour. Got it? Now remaining portion
रिमेनिंग डिस्टेंस कितना पड़ा? 120 माइनस 30, रिमेनिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू 120 किलोमीटर माइनस 30 किलोमीटर, दैट इज 90 kilometer. So remaining distance is 90 kilometer. So what we have to find out that how fast this train should travel from X to B so that the entire average speed of the trip will be 60 kilometer per hour. Got it? Average speed of the entire trip is 60 kilometer per hour. ये मान के चलो, सपोज करो आपने 9 बजे अपने घर से स्टार्ट हुए और आपको 10 o'clock तक कहीं पे जाना था, बट बिकॉज ऑफ जाम आप लोग 9:30 तक कहीं जा ही नहीं पाए। आप लोग घर से बस निकलते ही जाम में फंस गए और कुछ हो नहीं पाया। तो उस केस में आप लोग क्या करोगे? उस केस में आप जो बाकी का डिस्टेंस है थोड़ी स्पीड तेज करोगे ना, सो दैट कि आप 10 बजे तक पहुंच जाओ। सेम इसी केस के अंदर है। ट्रेन ने क्या करा, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फर्स्ट 30 किलोमीटर चले, बट बच्चों 2 मिनट रुकिए, पॉज कर दो एक बार, चलो कोई नहीं। हाँ जी, सो डिस्टेंस हमारा पहले 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया ये। अब जो बाकी का डिस्टेंस जो बच्चों बच गया, ट्रेन को इतनी तेज चलना है सो दैट कि इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस का टोटल हिसाब किताब जो स्पीड एवरेज स्पीड आए वो आनी चाहिए आपकी 60 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया आप सबको? मैं दोबारा बताता हूं भाई, एक ट्रैक है हमारे पास 120 किलोमीटर का, जिसमें फर्स्ट 30 किलोमीटर ट्रेन चलती है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जो बचे हुए आपके पास में 90 किलोमीटर हैं, वो ट्रेन कितनी तेज चले 90 किलोमीटर में, सो दैट कि भाई उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाए, वो जो स्पीड है एवरेज स्पीड कितनी बन जाए, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बन जाए। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई? चलो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द गिवन थिंग्स। बच्चों गिवन क्या क्या है? एवरेज स्पीड गिवन कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 120 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना है आपका? 120 किलोमीटर है। ओके, चलो जी, अब टोटल डिस्टेंस 120 किलोमीटर आ गया हमारे पास। तो फ्रॉम दिस कैन वी कैलकुलेट टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। क्या करा हमने? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एवरेज स्पीड नीचे आएगा, टोटल टाइम टेकन ऊपर चला गया। सो टोटल टाइम टेकन विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस divided by total distance divided by average speed। टोटल डिस्टेंस कितना है मेरे पास? 120 किलोमीटर डिवाइड बाय 60 इज इक्वल टू 2 आवर। सो टोटल टाइम टेकन फॉर द एंटायर जर्नी इज 2 आवर। गॉट इट? बेस्ड ऑन दिस एवरेज स्पीड, टोटल टाइम टेकन शुड बी 2 आवर्स। नाउ फ्रॉम दिस 2 आवर a train consumed first hour that is 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई है। बाकी कितना बच गया? 1 घंटा बच गया उसके पास और किलोमीटर 90 बच गए। अब देखिए जरा, फर्स्ट 30 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, रिमेनिंग distance need to be covered in। अब ट्रेन इज ट्रेवलिंग 30 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? सो विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, इन हाउ मच टाइम इट विल कवर दिस 30 किलोमीटर? टाइम कितना लगा इस फर्स्ट केस के अंदर? टाइम कितना लगा बच्चों? टाइम क्या होता है? स्पीड अपॉन टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इज 30।
1 आवर, 1 आवर का टाइम लगा हमें ए से एक्स तक पहुंचने में। क्लियर हो गई बात? अब मेरे पास क्या है, 90 किलोमीटर सही है, और कितना टाइम बचा है मेरे पास, 1 आवर का टाइम बचा है। सो रिमेनिंग डिस्टेंस नीड टू बी कवर्ड इन 1 आवर, दैट इज 2 - 1 1 आवर, एंड remaining distance need to be covered in 1 hour, and speed is equal to distance upon time, 90 by 1 is equal to 90 किलोमीटर पर आवर। सो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर मेरी ट्रेन जाती है तभी मैं ये एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की रख सकता हूं। क्लियर हो गई बात? चलो एक और सेम टू सेम न्यूमेरिकल एक और देखते हैं ऐसा ही, ठीक है। मैं क्या करता हूं, इसको क्लियर कर देता हूं, एक टू सेम बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल आप लोगों को एक और दिखाता हूं मैं, चलो करके इसी में ही। हमने क्या करा, ऑन ए ट्रैक ऑफ 120 किलोमीटर ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग फर्स्ट 40 किलोमीटर कर देते हैं इसको, फर्स्ट 40 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। हाउ फास्ट ट्रेन शुड ट्रेवल the remaining distance to get a average speed of 90 ले लें या छोड़ो, एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ये कर दिया मैंने, एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, चलो अब ध्यान से देखिए फटाफट। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये था मेरे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। अब जल्दी से मुझे बताओ गिवन क्या क्या है, यहां लिख दिया मैंने गिवन। गिवन है मेरे पास 120 किलोमीटर, ये क्या है मेरे पास, टोटल डिस्टेंस 120 किलोमीटर गिवन है, 120 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। क्लियर? फर्स्ट ये ट्रैक है, सपोज ये ट्रैक ए टू बी ट्रैक, दिस इज 120 किलोमीटर ट्रैक, ये मैंने लगा दिया यहां पे एक्स पॉइंट, दिस एक्स पॉइंट इज 40 किलोमीटर, एक्स पॉइंट इज 40 किलोमीटर, एंड स्पीड है इस 40 किलोमीटर की बच्चों क्या, 80 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया मेरा केस 1, ठीक है, इसको मैं दे दिया 1। अब केस 2, 120 में से 40 किलोमीटर तो चल गए इस स्पीड पे, बचे कितने, 120 - 40, रिमेनिंग किलोमीटर कितना बचा, रिमेनिंग डिस्टेंस को आर डी लिख दूं, रिमेनिंग डिस्टेंस 120 - 40, 80 किलोमीटर का डिस्टेंस बच गया। कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना। अब मुझे इस 80 किलोमीटर की डिस्टेंस की स्पीड पता करनी है, सो दैट जो मेरी एंटायर ट्रिप है उसकी एवरेज स्पीड कितनी आ जाए, 40 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड कितनी आ जाए, 40 किलोमीटर पर आवर। ये है मेरे पास गिवन। दोबारा ध्यान से देखो, मुझे पता है थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन, आप लोगों को लगेगा भाई ऑन ए ट्रैक ऑफ 120 किलोमीटर, ये 120 किलोमीटर का ट्रैक है, ट्रेन ने चली, जब चलेगी तो बेटा आराम से स्पीड पकड़ी, मान लिया उन्होंने कुछ भी चीज़ XYZ, ट्रेन चली, पहले 40 किलोमीटर ट्रेन ने कवर करे 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, चलती गई। उसके बाद आफ्टर 40 किलोमीटर उनको नहीं पता लगा कितनी स्पीड क्या थी, उनको बस इतना ध्यान में आया कि भाई मुझे जो एंटायर ट्रिप करनी है, मुझे जो 120 किलोमीटर जाना है, उसमें मेरी एवरेज स्पीड आनी चाहिए 40 किलोमीटर पर आवर की। एवरेज स्पीड शुड बी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो अब ये ट्रेन बाकी का जो बचा हुआ डिस्टेंस है, कैसे निकाला मैंने, टोटल माइनस कवर्ड 1, वो कितनी देर में करे, वो जो स्पीड आई वो क्या स्पीड से करे, सो दैट कि मेरी पूरी एंटायर जर्नी की स्पीड आ जाए 40 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप 120 किलोमीटर चलते हो तो आपका टाइम कितना लगेगा, किससे निकालेंगे, इससे। एवरेज स्पीड कितनी है 40, टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास 120, टोटल टाइम t ले लिया, इट एम्प्लॉयज t इज इक्वल टू
120/40, 3 आवर आ गया। सो 3 आवर इज द टोटल एंटायर टाइम फॉर द पर्टिकुलर जर्नी। भाई ए से बी तक जाने में एवरेज स्पीड 40 के हिसाब से 3 आवर्स लगाने चाहिए थे ट्रेन को। अब ट्रेन पहले क्या ए से एक्स तक गई, ठीक है। अब ए से एक्स तक कितना टाइम लिया, फ्रॉम ए टू एक्स, स्पीड कितनी है मेरी 80 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है। डिस्टेंस कितना कवर किया 40 किलोमीटर। टाइम क्या हो जाएगा, सेम यही फॉर्मूला। टाइम कितना हो जाएगा बच्चों इसके अंदर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 40 डिवाइड बाई 80 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 0.5 आवर। सो ए से एक्स तक जाने में इसे लगे 0.5 आवर। क्लियर, गॉट इट। अब बताओ रिमेनिंग टाइम कितना बचा, ए टू बी तक जाने का रिमेनिंग टाइम 3 माइनस 0.5 कर दूं रिमेनिंग टाइम। तो इसका मतलब ये जो एक्स से बी तक जाने के लिए जो 80 किलोमीटर है वो इसको रिमेनिंग टाइम में कवर करने हैं, तभी तो मेरी स्पीड निकलेगी। सो रिमेनिंग टाइम कितना हुआ 3 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 2.5 आवर। रिमेनिंग टाइम कितना है 3 माइनस 0.5 दैट इज 2.5 आवर रिमेनिंग टाइम आ गया आपके पास। अभी जो रिमेनिंग टाइम आया बच्चों आपका, स्पीड निकालनी है हमें। स्पीड कहां से, एक्स से बी तक की, एक्स बी। डिस्टेंस कवर कितना है 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई। रिमेनिंग टाइम इज 2.5 आवर। सो 80 डिवाइड बाई 25 इंटू 10, 5 से गया ये, और 5 2 जा एंड 16 5 80 इज इक्वल टू 32 किलोमीटर पर आवर। So the remaining from X to B, it should travel at a speed of 32 किलोमीटर पर आवर। Got it? क्लियर हो गई ये वाली बात आपको। सो इस तरीके से आपका ये न्यूमेरिकल होगा। आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं दोबारा बताता हूँ। ऑन ए ट्रैक ऑफ 120 किलोमीटर ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। फॉर इट एट दिस फर्स्ट डिस्टेंस इट कवर्स 40 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। Then how fast train should travel the remaining distance so that the average speed of the journey is 40 km per hour for the entire trip। क्लियर हो गई बात ये। सो एवरेज स्पीड का मतलब होता है बच्चों टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। गिवन हमारे पास क्या है, टोटल डिस्टेंस 120 किलोमीटर, एवरेज स्पीड है हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर गिवन। एवरेज स्पीड और डिस्टेंस इन दोनों के बेस पे मैंने टाइम कैलकुलेट कर दिया, तो मेरा टाइम ऑफ द जर्नी आता है 3 आवर। ठीक है, अब मैं कहता हूँ केस 1 ए और एक्स के बीच में, ए और एक्स के बीच में मैंने स्पीड ली 80 किलोमीटर पर आवर की, गिवन था मेरे पास 80 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस था मेरे पास 40 किलोमीटर का, डिस्टेंस 40 किलोमीटर का, तो टाइम आ गया मेरे पास, कैलकुलेट करा मैंने, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 0.5 आवर आ गया। सो अब एक्स से बी तक जाने के लिए मुझे रिमेनिंग डिस्टेंस अपॉन रिमेनिंग टाइम करना पड़ेगा। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना था 120 माइनस 40 80 किलोमीटर। रिमेनिंग टाइम क्या था 3 आवर माइनस 0.5 2.5। कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 32 किलोमीटर पर आवर। सो द ट्रेन शुड ट्रेवल एट a स्पीड ऑफ 32 किलोमीटर पर आवर सो दैट द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर ट्रिप विल बी 40 किलोमीटर पर आवर। सो बच्चों इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन होगा। चलिए तो फिर आज का हम एक लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं। जस्ट राइट डाउन, ए कार इज मूविंग with a velocity of with a speed of 60 km per hour a car is moving
with speed of 60 kilometer per hour for 0.52 hours, for 0.52 hours, and then moving with a speed of 30 kilometer per hour, 30 kilometer per hour for next 0.24 hour, and then next it is moving with 70 kilometer per hour for 70 kilometer per hour for 0.71 hour. Calculate average speed of the car. आई थिंक इतना मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन, फटाफट आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। दोबारा समझा देता हूं मैं। ए कार इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 0.52 आवर्स। एक कार है जा रही है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टार्ट होती है और 0.52 आवर तक चलती रहती है। देन उसके बाद 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है 0.24 आवर तक। उसके बाद वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है 0.71 आवर। क्लियर हो गई बात? तो 3 स्पीड दी हुई है, 3 टाइम दिया हुआ है। आपको क्या करना है? कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। फटाफट फॉर्मूला लिख दो। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था बच्चों? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सबसे पहली चीज हम लोग करते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, और टोटल डिस्टेंस कवर्ड लिख दो इसको। अब आ जाओ फटाफट, गिवन क्या क्या है? गिवन 1 2 3, 3 केस बने हुए हमारे पास गिवन के। पहला क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है। टाइम कितना है? T1 इज 0.52 आवर। दूसरा क्या है बच्चों? 30 किलोमीटर पर आवर 0.24, 30 किलोमीटर पर आवर। T2 इज गिवन 0.24 आवर्स। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट 70 किलोमीटर 70 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी है हमारे पास बच्चों? टाइम कितना था? 0.71 आवर। सो दिस इज योर गिवन। नाउ एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। मेरे पास तो बच्चों स्पीड दी हुई है, अब स्पीड दी हुई है और टाइम दिया हुआ है। यहां से मैं इंडिविजुअल डिस्टेंस क्लियर कर सकता हूं। आई कैन फाइंड आउट 1 से D1, 2 से D2 और थर्ड इक्वेशन से D3। रिस्पेक्टिव केसेस में क्या क्या डिस्टेंस कवर करेगा वो डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकता हूं, और इन सबको अगर जोड़ दूंगा तो इट विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड। और जो टाइम दिया हुआ इन सबको जोड़ दो, इट विल बी इक्वल टू टोटल टाइम टेकन। तो फटाफट क्या करते हैं हम लोग? पहले टोटल टाइम निकाल लेते हैं। टोटल टाइम कितना आएगा? 0.52, 0.52 प्लस 0.24 प्लस 0.71। जरा फटाफट जोड़ो उसको, कितना आता है? 1.47 आवर। टोटल टाइम आ गया 1.47 आवर। नाउ डिस्टेंस निकालना है फटाफट। D1 डिस्टेंस, फॉर्मूला क्या था? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। Speed is equal to distance upon time, so it implies distance is equal to speed into time. So distance is equal to speed into time. Clear है बात? पक्का? तो फटाफट अब जरा बताओ मुझे D1 कितना हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इज 60 किलोमीटर इंटू 0.52। करो कैलकुलेट। D2 कितना आएगा? 30 किलोमीटर इंटू 0.24। D3 कितना आ जाएगा? 70 किलोमीटर इंटू 0.71। जल्दी बताइए कितने किलोमीटर आ रहा है आंसर? जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर लिखिए, लाइव चैट के अंदर अपनी फटाफट जल्दी से फटाफट आंसर लिखो जल्दी से। इसे कैलकुलेट करोगे देन टोटल डिस्टेंस
टोटल डिस्टेंस बच्चों इन सबको कैलकुलेट करने पे आपके पास आता है 88.1 किलोमीटर। ये इंडिविजुअल आप लोग कर लेना, 88.1 किलोमीटर। टोटल टाइम आ गया 1.47, टोटल डिस्टेंस आ गया 88.1 किलोमीटर। फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो, एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड, व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड? 88.1 डिवाइडेड बाई 1.47, 1.47. What will be your answer? The answer is 59.9 किलोमीटर पर आवर। सो 59.9 किलोमीटर पर आवर आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ गया बच्चों। ये क्लियर है बात? पक्का? कोई डाउट किसी को इसके अंदर? चलो जी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। सो बच्चों आज हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे एवरेज स्पीड के बारे में। अभी हम लोग इतना ही करते हैं, जस्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूं ग्राफ के बारे में फटाफट। बिकॉज ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, ये न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास 3 मार्क्स के अंदर ये न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं। अब हम देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ग्राफ के अंदर बच्चों दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज डिस्टेंस इन मीटर, दिस इज योर टाइम इन सेकेंड। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन इस तरीके से, तो ये होगा आपके पास दिस ग्राफ इज ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन हो गया, इसे यूनिफॉर्म स्पीड बोल दो या फिर यूनिफॉर्म मोशन। मैंने कल आप लोगों को एक टेबल बना के दिखाई थी। सपोज करो दिस इज योर डिस्टेंस, दिस इज योर टाइम, डिस्टेंस इन मीटर, टाइम इन सेकेंड। एक टेबल बनाओ, टाइम है हमारे पास 0, डिस्टेंस 0, टाइम 5, डिस्टेंस 4 मीटर, टाइम 10, डिस्टेंस 8। देन मैं क्या करता हूं, टाइम 15, डिस्टेंस 12, टाइम 20, डिस्टेंस 16 मीटर। ये ग्राफ आप लोग प्लॉट करके देखना, यू विल गेट दिस टाइप ऑफ ग्राफ। ये क्या है आपके पास? यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ। क्लियर हो गई बात? सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, if it is a straight line like this bisecting these two x and y axis, so this is of uniform speed or we can say uniform motion. Clear? अब एक टर्म आती है बच्चों स्लोप। स्लोप का मतलब होता है y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। सपोज मैंने ये 2 पॉइंट ले लिए a और b, ये क्या हो गया? वाई ए, दिस इज पॉइंट वाई बी, एंड सेम इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये क्या आ जाएगा आपके पास? एक्स ए, एक्स बी। ध्यान से देखो, मैंने इस पे 2 पॉइंट लिए ए और बी। अब ए और बी पॉइंट वाई एक्सिस पे भी कट करेगा, एक्स एक्सिस पे भी कट कर रहा है। तो वाई पे आया तो वाई ए बोल दिया, बी आया तो वाई बी, एक्स पे आया एक्स ए और एक्स बी। ये मेरे पास पॉइंट आ गए। तो स्लोप क्या होता है बच्चों? स्लोप का मतलब होता है वाई बी माइनस वाई ए डिवाइडेड बाई एक्स बी माइनस एक्स ए, वाई बी माइनस वाई ए डिवाइडेड बाई एक्स बी माइनस एक्स ए। क्लियर है? वाई बी और वाई ए क्या है बच्चों? डिस्टेंस है। ये क्या आएगा? डिस्टेंस आएगा। और ये क्या आएगा? टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? फॉर्मूला स्पीड का बन गया। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज नथिंग बट स्पीड, स्लो। सो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज
स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज, क्या रहेगा? स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्पीड। याद रखिए इस बात को, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नथिंग बट स्पीड। क्लियर हो गई ये बात? चलो भाई फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लो। अब एक चीज देखो, स्क्रीनशॉट हो गया ये। सपोज करो ये यहां पे आया, आप लोग जा रहे हो जाम में फंस गए, तो क्या होगा? डिस्टेंस आपका क्या इंक्रीज होगा? टाइम बढ़े जा रहा है, रेड लाइट पे फंसे हुए हो, जाम पे फंसे हुए हो, डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा आप लोगों का। तो ग्राफ कैसा आएगा आपका? ध्यान से ग्राफ बना के देखो, फटाफट बना के देखो कैसा ग्राफ आएगा। आपको कुछ इस तरीके से ग्राफ मिलेगा, ये डिस्टेंस, ये टाइम, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, डिस्टेंस मीटर के अंदर, ये मीटर ब्रैकेट में यूनिट लिखी है। सो दिस इज द ग्राफ फॉर रेस्ट। ये रेस्ट का ग्राफ हो गया। दैट डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज फॉर द रेस्ट। जाम में फंस गए, रेस्ट का टाइम है। और अगर ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है कि डिस्टेंस यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे आ जाएगा मान लो 12, यहाँ पे आ गया 25, इसका जो ग्राफ बना के देखोगे आप लोग, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। So this is the graph of non-uniform motion. So guys, this is all for today. Today we covered some numericals for average speed calculation and distance time graph. The important thing which you have to note in this is that slope of distance time graph gives you speed. This is a graph of uniform speed or uniform motion. This is the graph for rest, body at rest. और ये क्या है ग्राफ? बॉडी एट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये तीनों के तीनों ग्राफ कभी कभी डायरेक्ट बनाने के लिए भी आ जाते हैं। ड्रॉ द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, बॉडीज एट रेस्ट और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो इन सब के ग्राफ आप लोग ध्यान रखना। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होता है? जब आपकी स्पीड और जब आपका डिस्टेंस अनइक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि आपने कभी कोई बॉल को थ्रो किया, जब वो वापस ऊपर से नीचे आएगी तो उसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ये वाला कब है? रेड लाइट पे खड़े हो, आप घर से जा रहे हो, आपका ग्राफ बना रहे हैं हम लोग अगर मोशन का ग्राफ, तो रेड लाइट पे खड़े हो तो रेड लाइट पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। ये हो सकता है इस तरीके से आए, मान लो ग्राफ कोई ये आ रहा है, ऐसे आके ये इस तरीके से हो गया। सो ग्राफ में ये हो गया O A B। अब क्वेश्चन आता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ ए कार मूविंग फ्रॉम O टू B। अब इस ग्राफ में वेयर दिस पर्टिकुलर कार हैज अ यूनिफॉर्म मोशन और वेयर द बॉडी इज एट रेस्ट। सो फ्रॉम O टू A, तो क्या है मेरे पास? यूनिफॉर्म मोशन। एंड फ्रॉम A टू B, A टू B क्या हो गया बच्चों? A टू B इज नथिंग बट A टू B इज रेस्ट। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं कल नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय। जस्ट स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका।